Yeah, so hello Mr. Rupesh, how are you? Hi, I'm fine. How are you? A very warm welcome to Apna Gurmel channel. So first, just introduce about yourself to our viewers that from which state you are, from where you did your BTech. Hi, I'm Rupesh Prasad. I've recently joined HPCL in the campus recruitment batch of 2020, and I've completed my BTech in mechanical engineering from NIT Durgapur. Okay, Um, mechanical it has engineering. been Okay, okay. mechanical engineering, and it has been 6 months since I have started working in the organization as executive engineer. Okay, now which location you got there? My location currently working in Madurai bottling plant of Hindustan Petroleum, LPG. Okay, okay. Okay, so let's move to the question, sir. So first question is, what is the work profile of HPCL engineer training? See, when you join the organization, you are not treated as a trainee. From the first day onwards, you are supposed to be working as an officer here, and of course, there will be some training given on the job. But then again, the organization does require its executive engineers to be not treated as a trainee. Basically, what happens is, for me, it was like for 1 month, I was in one of the guest houses for HPCL. After that, when I came to the location, my boss actually like for 40 days there was one training for us where I actually was allotted to different other senior officers who actually told me about how the different part of this plant operates. Now after that, this 40 days was over. There was also one training that was given to me by the central SBU. One was my Okay, okay. on location training, and the other was the central SBU training. And after that, they started giving me some small tasks to handle. And after that, after 3 months or so, I started handling independent shift operations. So currently, I'm working in shifts. ओके ओके। और एचपीसीएल का भी जो वर्क है, मतलब एचपीसीएल क्या करता है, थोड़ा जस्ट आपको ब्रीफ में आप बता सकते हैं, और क्या डिपार्टमेंट रहते हैं एचपीसीएल में? तो आफ्टर ज्वाइनिंग विच डिपार्टमेंट वी कैन गेट लाइक डिटेल आइडिया? See, for us, like the people who have joined with me are from mechanical, civil, electrical, electronics. Everyone is an engineer in different fields. But जो departments हैं हमारे, it is mostly like uh, see, I'm in operations. One of the guys who joined with me is in retail. One of ओके other ओके। guy is in sales. कोई टर्मिनल में रिफाइनरी है, पे? कोई LPG में है, कोई रिफाइनरी में है, कोई पाइपलाइन में है, तो और कोई प्रोजेक्ट में है. तो ये मतलब आपका कुछ फिक्स नहीं है कि where you might be getting posted. So you ओके, cannot say रैंडमली something like that. सबको मतलब मिलता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर अगर ब्रांच से आप इंजीनियरिंग करते हो तो यही डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है मतलब? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है. There is one electrical from my college only, and she ओके again is in LPG, and even I am in LPG. So there ओके is no ओके difference. ओके। सो वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द वर्क कल्चर ऑफ एचपीसीएल? तो आपको कैसा लग रहा है अभी उधर, कैसे कलीग्स, मतलब सभी कैसे हैं? Oh, work culture is awesome. For me, it is perfectly fine. I mean, it is a completely white collar job, I'll tell you. Uh, from the first day, you are given good responsibility. आपको responsible होना है खुद पे. आपको कोई काम नहीं करना, आपको physically कुछ करना नहीं है. All you have to do is mental. मतलब यहाँ पे ओके। it may happen that you might have, अगर normally people what they see is that there is a government job and I'll just go राइट and chill राइट, out. वो प्रॉब्लम है। So this is not what it is. I'll tell you, this is not it is in either of the oil PSUs. I'll tell you, in IOCL, BPCL, from what I've heard from my friends, and so is in case of HPCL also. Uh, you might have to extend beyond your scheduled 8.5 hours. There might be Sundays when you might have to work. It has happened like from morning 5 o'clock till evening 6 o'clock. I have worked 6 o'clock, 7 o'clock. So अरे you बाप रे। cannot say like that also. But then again, every Sunday you work, you are paid extra. राइट Like राइट, हाँ। वैसा हर कुछ चल रहा है कि you will be paid, you will be taken care of. Also, there are a lot of facilities provided. Like there is for me while I am in under training for 1 year, I have been provided for medical facility has been provided to me, and uh, फिर मेरे को कन्वेंस अलाउंसेस भी मिल जाते हैं. बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह हैं, आपको शायद नेट पे मिल जाएगा. ओके ओके, तो यही एक नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फैसिलिटीज क्या क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स कैसे है? अभी आप मदुरई में हो तो उधर क्वार्टर का मतलब कैसे है सिनेरियो? Quarters. Actually, as far as accommodation is concerned, HPCL has good accommodation in Visakhapatnam and Mumbai, I think. But हाँ। because हमारा मेरा location is in Madurai LPG, so it is a
यहाँ पे हमारे कुछ नहीं है, वी आर गेटिंग HRA, हाउस रेंट अलाउंस हम लोग को मिल जाता है, सो वी आर टेकिंग हाउस एंड उधर रहते हैं हम लोग। ओके सर, सो वर्कलोड मतलब बोल सकते हैं कि एचपीसीएल में अच्छा वर्क मतलब वर्कलोड है उधर, ऐसा नहीं कि पूरा ही मतलब रिलैक्स जॉब है, ऐसा वर्कलोड है? नहीं, वर्कलोड इज देयर, वर्कलोड इज देयर। अगर आप सोच रहे हैं कि वर्कलोड नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 months into the organization, I was handling, let's say, manpower of around 40-45 people, Oh, and that's great. all of them were like almost double my age. तो ये चीज रहता है, वर्कलोड तो रहता ही है हमेशा। ओके ओके, क्योंकि इससे ही एक कनेक्टेड क्वेश्चन था कि कुछ स्टूडेंट को अगर और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, ईएससी हो गया, तो वो कर सकता है कि नहीं? It depends. I'll tell you. It depends on the SBU. It depends on the location. It depends on the number of people working in management staff at your location. तो जो लोग सेल्स में हैं, जिन लोगों को, या फिर जो लोग रिटेल में हैं, जिनको ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा होता है, तो आई डोंट नो कि उनका क्या है, बट फॉर मी आई एम इन ऑपरेशंस। तो आफ्टर दैट लाइक 8 or let's say 9 hours of working, I don't have to receive any calls as such. So maybe I'll be, if let's say if I decide to go for anything else, so I'll be getting let's say 3 or 4 hours for myself. Study के लिए आप निकाल सकते हो in operations, but in case of sales हो या फिर retail engineering है, तो you might have to travel let's say 300-400 kilometers per day. तो आप स्पेसिफिकली अगर आप सेल्स में हो तो उधर प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो सेल्स का थोड़ा डिपार्टमेंट है। I mean, I don't actually know. See, I've worked for only 6 months in operations. So from what I've heard from other people, this is what I've heard from other people. Okay. So in operations you'll get it. ऑपरेशन में जो वर्क है आपका, थोड़ा बहुत आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब क्या करना होता है इस तरीके? बेसिकली मेरा डेजिग्नेशन है ऑपरेशंस ऑफिसर एट मदुरई एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी बॉटलिंग ऑपरेशंस होता है, ये मेरे को देखने का है। प्रोडक्शन हो या फिर कितना मैन पावर मैनेजमेंट हो, सारा चीज मेरा ही काम होता है। तो फॉर मी वर्किंग इन ऑपरेशंस, मेरा प्लांट 2 शिफ्ट में काम करता है। फर्स्ट इज मॉर्निंग और दूसरा इवनिंग शिफ्ट होता है। तो मेरा टाइमिंग्स इज लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 2:30 if I am in first shift, and if let's say I am in second shift, then it is from 2 to 10:30 इवनिंग। रात का 10:30 को मेरा आउट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका 10:30 का हो गया तो आप निकल सकते हैं तुरंत। आपको यू हैव अ सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर क्लोजिंग द प्लांट। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 6 बजे का सुबह है तो मतलब आप 6 बजे जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीड्यूर्स दैट नीड टू बी फॉलोड बिफोर स्टार्टिंग द प्लांट। सो लेट्स से मेरा फर्स्ट शिफ्ट होता है तो आई हैव टू गो इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। लेट्स से 5 बजे घर से निकलना पड़ता है, 5:30 तक वहाँ रीच करना पड़ता है। उसके बाद सारा चीज़ का सेफ्टी का जायजा लेना पड़ता है, सिक्योरिटी से, फिर आपका फिर कैलिब्रेशंस करना पड़ता है इक्विपमेंट का, जितना भी है आपका। हमारा स्टोरेज टैंक्स, उनको फिर ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है, लॉट ऑफ ऑपरेशंस इधर। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉटलिंग ऑपरेशंस 6 बजे सुबह से लेके 2:30 बजे तक। और सेम केस है आपका सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही चलता है। और दिन भर का आपको मान लीजिए बहुत कुछ काम रहता है, मटेरियल रिसीव करना हो या फिर इन्वेंट्री लेना हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रिपोर्ट साइन करना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ता है बॉसेस को, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सेल्स ऑफिसर्स के साथ, तो बहुत कुछ होता है। ओके। और ये जो शिफ्ट वर्क है आपका, वो फिक्स होता है वीकली या रैंडमली मतलब होता है वो? नहीं, इट डिपेंड्स। लाइक क्या है कि मेरा अगर एक वीकली मेरा वेरिएशन हो जाता है। मतलब अगर लेट्स से मेरा एक शिफ्ट में एक वीक में फर्स्ट शिफ्ट है तो नेक्स्ट वीक आई विल बी वर्किंग इन सेकंड शिफ्ट। फिर ये ऑल्टरनेट करके होता है। और लेट्स से कोई मेरे को अगर प्रॉब्लम हो गया तो मैं अपने पार्टनर से बात करके शिफ्ट चेंज कर सकता हूँ। ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो जॉब है ये ट्रांसफरेबल है, तो अगर किसी कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग चाहिए होगा तो पोस्टिंग का कैसे सिनेरियो है एचपीसीएल में, खासकर गर्ल कैंडिडेट? ये यहाँ पे ये है कि एवरी 3 years ऑन एन एवरेज यहाँ ट्रांसफर होता है। एंड यहाँ पे मेरे को नहीं पता, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डोंट नो इफ एनी प्रेफरेंस इज गिवन अगर किसी को होम पोस्टिंग चाहिए बोल के। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई वाज गिवन इन तमिलनाडु। तो हाँ, एक होता है कि आपके करियर में देयर आर 2 रिक्वेस्ट दैट यू कैन मेक फॉर होम ट्रांसफर। सिर्फ 2 बार अपने करियर में आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ट्रांसफर चाहिए अपने घर के पास।
अगर लेट्स से आपको घर के पास नहीं दिया गया लोकेशन तो ओके ओके, वैसा है, ओके ओके। तो प्रेफरेंस मतलब नहीं मिलेगा आई गेस मुझे कि तो गर्ल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट पॉसिबिलिटी मतलब रहेगी। ओके, सॉरी नेक्स्ट आवाज नहीं क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो आई होप जो व्यूअर्स है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अब तक के डिस्कशन के साथ। ओके सर, तो अभी जो आप ज्वाइन किए हो एचपीसीएल थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कैंपस के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, मतलब आपको गेट एग्जाम देना नहीं पड़ा, क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट आया है एचपीसीएल का वो एग्जाम लेने वाले हैं और एग्जाम के बाद फिर जीटी होगा और फिर इंटरव्यू होने वाला है। तो आई गेस आपने जीटी एंड इंटरव्यू डायरेक्ट दिया है, राइट? ओके, तो आप अपना जी हाँ, हम जीटी लोगों का का एक्सपीरियंस अगर आप मतलब शेयर कर पाओ कि जीटी में क्या है और कुछ नहीं। हम लोगों का ऐसा कैंपस रिक्रूटमेंट था, तो हमें वो हमारे कॉलेजेस में आए थे और वो मार्क्स बेसिस पे डायरेक्ट ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया था हम लोगों को। तो एज फार एज ग्रुप टास्क इज कंसर्न्ड, आई विल टेल यू क्या होता है कि जो पैनल होता है आपका एचपीसीएल का, उनमें 8 से 9 लोग रहते हैं एंड दे आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स। तो हो सकता है कोई ईडी हो, कोई सीजीएम हो, वैसा लेवल का ऑफिसर्स रहते हैं और 8 से 9 लोग रहते हैं। तो ग्रुप टास्क में क्या होता है कि दे विल बी अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 7 और 8 पीपल, लाइक 7 और 8 कैंडिडेट्स, और सामने भी आपके 8 ऑफिसर्स रहेंगे सीनियर। ओके ओके। तो अब वो लोग क्या है कि दे विल बी इन अ सेमी सर्कल जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, and you 8 people will also be sitting in a semicircle in front of them. So both the semicircles will be facing each other, and you will have to you will be given any, let's say, any case based questions. जैसे for us it was like business development हो या फिर आपका कोई स्ट्रैटेजी इवॉल्व करना हो, तो उन तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि हम लोगों के लिए था कि एक शॉपकीपर है जो लेट्स से 3-4 जनरेशन से ऐसे ही मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं किराना का दुकान, उस तरीके का शॉप खोला हुआ है। तो अब लेट्स से क्योंकि अब डिजिटल एज आ गया है, तो हाउ एग्जैक्टली शुड यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस आपका ऑफलाइन टू नॉर्मल ऑनलाइन। ऑफलाइन टू, या सो दिस वाज द केस गिवन टू अस। ओके तो ओके। इस तरीके के मतलब बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको नेट पे मिल जाएंगे दैट यू कैन प्रैक्टिस। मोस्टली इट इज लाइक स्ट्रेटेजी कैसे करना है, स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट हो या सेल्स का हो, वो लोग ऑन द स्पॉट आपका ये चेक करते हैं कि आप कितना दिमाग यूज कर पाते हैं। ओके One ओके। thing I'll tell in case of group task is that try to take a leadership stance. First things first. And also do not, if let's say if someone is speaking, try not to interrupt him. ज़्यादा जोर से नहीं बोलने का, मतलब try to be calm, try to be cool, try to be friendly. And it is a group task. It is not a group discussion or debate or anything. At the end of the group task, you'll have to arrive at a conclusion that this is how we'll be going forward. So that conclusion part has to be done correctly. Everyone will be contributing, and finally one has to speak up that how should we end up helping the person concerned. So that ओके, is तो how कुछ group ऐसा task was टाइम done. फिक्स मिलता है हर एक बंदे को? नहीं, ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, मतलब आपको पूरा एज अ ग्रुप लाइक 20 मिनट्स दिया जाएगा ओके ओके, एंड होल ग्रुप को उन 20 20 मिनट। मिनट्स में आप खुद में डिस्कस कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए, सब कुछ कीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अप इन ग्रुप टास्क इज try not to look at interviewers while you are doing the ओके solving the ओके, case. सिर्फ जो अपना You ग्रुप are है उसमें ही हम ध्यान दें अच्छे से। exactly. ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही। ओके, सो जो इंटरव्यू है आपका वो कैसे हुआ था आपका, मतलब पर्सनल इंटरव्यू या टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था आपका? As far as interview is concerned, हम लोगों का आई डोंट नो कि आपका गेट या फिर जो आपका एग्जाम हो रहा है ये कैसा होगा, बट फॉर अस कैंपस प्लेसमेंट बैच के लिए इट वाज मोस्टली 85% क्वेश्चंस वर एचआर बेस्ड। आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस दे वर आस्किंग कि how exactly will you do if such situation arises, how will you do if such situation arises. For me it was a stress interview, like in interview आपका वेरी मच सिमिलर टू जीटी रहेगा कि आपके 8 ऑफिसर्स रहेंगे, बट इन इंटरव्यू यू विल बी ओनली पर्सन प्रेजेंट। मतलब आप अकेले बैठे रहोगे और सामने सेमी सर्कल में 8 ऑफिसर्स रहेंगे एंड यू विल बी सिटिंग लेट्स से 8 or 9 feet away from them, so you will be visible, like your entire from head to toe will be visible to them. So and what I think is that कि उन 8 लोगों में से 1 or 2 are psychiatrist also.
they'll Okay. be seeing how you react. Let's say if you're getting nervous or something, or how are you replying to questions. So your behavior, it is mostly behavioral. From what I have thought, I've got is it is mostly behavioral. My interview actually went horrible. Like they asked me questions and it was mostly a stress interview for me. And let's say 7 people from my campus were selected, and out of them, let's say 4 or 5 people का interview stress interview ही रहा था. Okay, And okay. all of them said मतलब कि interview पीआई में ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि मतलब क्योंकि टेक्निकल में ज्यादातर पब्लिक को प्रॉब्लम होता है, लेकिन पीआई में कौन से मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको रिकॉल कर सकते हैं क्वेश्चन कुछ तो? नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि लेट्स से कि आपको जैसे कि आप मान लीजिए अभी 22-23 साल के हो, 21 साल के हो, आपके बंदे होंगे जो आपके अंडर होंगे जो 50-55 इयर्स के होंगे, तो हाउ विल यू हैंडल दैट, इस तरह का क्वेश्चन था. फिर ऐसा क्वेश्चन था कि आपको अगर कुछ साउथ इंडिया में पोस्टिंग दे दिया जाए, आपको कोई छोटा सा गांव में पोस्टिंग दे दिया जाए, लेट्स से somebody is in project and you'll have to work in some village also. So उन लोगों को फिर कैसे आप हैंडल करोगे, आपको फिर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि लेट्स से you are from a good college, so somebody from your college will go for an MBA and they'll be earning so much more than you, so how will you be coping with it. So lot of questions. हाँ, तो these are all ये मतलब आप इसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ और लेट्स से एडजस्ट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू. फॉर मी इट वाज अ स्ट्रेस इंटरव्यू एज सच. ओके ओके. और आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा, फाइनल के प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा कुछ? मेरे को पर्सनली कुछ प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा गया था, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे मेरे कैंपस से उनको कुछ पूछा गया था. ओके. कुछ टेक्निकली पूछा गया था, कुछ बिहेवियरली पूछा गया था. ओके. अभी जो इंटरव्यू होने वाला है, जो एग्जाम के थ्रू कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, तो उनके अभी टेक्निकल होगा कि नहीं पता नहीं अपने को, लेकिन अगर सपोज टेक्निकल हुआ तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप क्या सजेस्ट करोगे, किन सब्जेक्ट पे मैक्सिमम फोकस किए करे स्टूडेंट? सो मुझे एक्चुअली में 2 या 3 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा गया था. मोस्टली आई वुड टेल मैकेनिकल ग्रेड्स टू फोकस ऑन फ्लूइड्स, पंप्स एंड कंप्रेसर्स. ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को लेट्स से हेड के बारे में पूछा गया था और कंप्रेसर के बारे में पूछा गया था. सो दैट्स इट. टेक्निकल हमारे यहाँ हुआ ही नहीं था मोस्टली, लाइक एक या 2 क्वेश्चंस टेक्निकल हुआ था. तो यू कैन गो फॉर फ्लूइड्स एज वेल एज पंप्स एंड कंप्रेसर्स. ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बाद में बाकी के भी करना है आपको, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम के थ्रू लेने वाले, तो अपने को पता नहीं अगर सेम उनका पैटर्न रहा कि एग्जाम में आपको टेक्निकल चेक करेंगे, क्योंकि पेपर टेक्निकल ही है, जो एग्जाम वो लेने वाले इस बार वो टेक्निकल लेने वाले, इसलिए. ओके मिस्टर रुपेश, तो अभी तक आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी. एक लास्ट क्वेश्चन था कि फॉरेन टूर अपॉर्चुनिटी कुछ मिल सकता है एचपीसीएल में? बेसिकली आपका फॉरेन टूर मेरे केस में आई डोंट थिंक हमारे जो इंजीनियर लेवल है इनके में हो पाएगा कुछ भी. कुछ एक सीनियर लेवल पे अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व है तो शायद उनको फॉरेन ट्रिप्स मिलता हो. मुझे जानकारी नहीं है कि फॉरेन ट्रिप्स किसी को मिला है आज. ओके ओके ओके. सो थैंक यू मिस्टर रुपेश. एक लास्ट टिप आप देना चाहेंगे टू एक्सेल, टू फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सेल देयर एग्जाम एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ एचपीसीएल? In the GD and in group task as well as interview, try not to be nervous. Try to be bold. That is what I would say. Okay. Nervous नहीं होने का, chill रहने का, and you will sail through. Okay, thank you, Mr. Rupesh. Thank you so much for your time. And all the best for your future. Thank you so much. Yeah.